for the husband, Lordship. My divorce petition was allowed by the trial court. Against that, on the ground of cruelty, against that order, they have preferred this appeal. Lordship, on the hearing dated 5th March. The decree is granted. Yes, Lordship. Divorce petition was allowed and decree was granted. Against that, they have preferred the first appeal. On the order hearing dated 5th of March 2020, parties were present before the Honorable Court and there were chances of compromise. So, Honorable Court directed that both the parties remain present For mediation. before family court and compromise be initiated. Her demand was previously for 17 lakh rupees. I was present before the family court with 17 lakh rupees cash. But on that date, she did not receive and her demand increased. Thereafter, when this matter was, I filed an urgent hearing application for Honorable Court. Then at that time also both the parties were present. Now again her demand increased to 30 lakh rupees. She is not in a condition to do compromise, Lordship. So date may kindly be fixed for final hearing, Lordship, because order of status quo is there in this case and I am not able to remove. नहीं तय करना, लास्ट डेट पे दोनों को बुलाया था। हम नहीं बुलाएंगे। अब आपको अगर तय करना है तो आप बता दो, अदरवाइज विल प्रोसीड फॉर फाइनल हियरिंग। 24th August में kindly fix for final hearing. हाँ, नहीं 24th अगस्त इज टू क्लोज के लिए है। लास्ट डेट पे So the status quo कब? 10/5/2022। स्टेटस को ऑर्डर है, इस वजह से ना तो हम शादी कर सकते हैं और ये बड़ा मुश्किल है भाई। if they don't want to argue finally, so I will file application for vacating stay or Lordship may kindly vacate the interim order of status, Lordship, because she is not. देखो समझा दो उसको। सी आज भी प्रेजेंट है। सी कहाँ है बुला, कौन है? I'm also ready to pay the previous amount, that is 18 lakh rupees for compromise. Her demand is divided. मैडम खत्म करो। तो झगड़ा क्यों किया था? झगड़ा क्यों किया था? पहले इनकी मेरी कंप्लेंट नहीं है पहले। नहीं लगाई 13 शादी कब हुई थी? मैरिज was 2015। कचहरी से भी तो सब तो थक गई मैं तो। 11/6/2015 marriage was solemnized. 11 June 2015. And right now she is harassing the respondent. तुम तो 7 साल हो गए और कब से अलग रह रहे हो? 8 महीने भी नहीं रखा, 11 महीने में तो केस हो गया। 11 महीने केस हो गया। क्योंकि वो शुरू से कहते थे शादी हुई, उसके दूसरे दिन ही बोल दिया था अपने घर जाओ। मैं नहीं आई तो मेरी कंप्लेंट कर दी। और डिग्री भी हो गई, एक्स पार्टी हुई क्या? No, Lordship, both the parties appeared. She filed an application under section 9 of HMA and I filed under section 13 of HMA. Her section 9 application was dismissed and my section 13 application was allowed by the trial court. Both the parties were present before the trial court. Thereafter, in presence of both the parties, the final order was passed. So, Lordship may kindly hear the case finally, Lordship, because otherwise she is not ready for compromise. She is not ready. She is not ready for compromise because She wants to live with you. नेक्स्ट टाइम पे भी because previously also I was ready with the cash. अरे भाई कैश तो ठीक है, वो तो कह रही है साथ रहने का, तो वो रखने को तैयार नहीं है आपको। शादी करी, नाम छुड़ाया बस शादी का। पहले मारा पीटा भगाया, ये सबसे मैं नहीं मानी तो मेरी कंप्लेंट कर दी। कैसे नहीं तो ऐसे तो भागेगी। मैंने तो सारे प्रयास कर लिए। आप कहाँ रहती हो? छुपरी कहाँ रहती? शिवपुरी शिवपुरी। और ये कहाँ रहते हैं? गुना। You are also residing in Shipri, Lordship. तो भैया शादी क्यों बनाई थी? Lordship, on the ground of cruelty, I filed this application. 2 महीने में क्रूरटी हो गई।
शरारत है ना भाई। या तो आप शादी नहीं बनाते, जब बनाई थी तो रहना चाहिए था। 11 महीने भी नहीं रह पाए साथ में और केस लगा दिया। केस कब लगाया? On 24th मई में August 2016 सोलह में 2016 बताओ, एक साल भी साथ नहीं रहे। इस बीच में भी सर मायके लेने नहीं आते she थे। was very cruel, lordship. अरे व्हाट क्रूएल, टॉकिंग नॉनसेंस, व्हाट क्रूएल्टी। देखिए एक चीज बताओ, कोई गलती नहीं है, गलती होती तो मैं छोड़ देती, सोचती ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दोनों परिवार बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन बिना गलती के मुझ पे शादी का कलंक लगा के मेरा यूज करके मुझे छोड़ दिया। और क्रूएल्टी प्रूव भी हो गई। क्या क्रूएल्टी किया? वही केस माँ को मारा, झूठा केस लगाया भगाने के लिए। इन्होंने इनकी माँ के साथ क्रूरटी की। सर रही एक इंस्टेंस को क्रूएल्टी मान लिया। हाँ सर, मैं वो एक घटना को क्रूएल्टी हो गई। वो पढ़ा 10 ताने वर्षे 10 ताने। व्हाट इज क्रूएल्टी? एक साल साथ नहीं रहे, जानते भी नहीं होगी दूसरे को। 3 महीने साथ नहीं रहे, लेने ही नहीं आते थे नंबर ब्लैक लिस्ट में, पता नहीं किस दबाव में आके शादी की। Both the parties may be directed to प्रेजेंट क्या मतलब हुआ? सही बात है, तो वो बच्ची उसकी जिंदगी तो खराब हो गई ना। तुमने शादी बना ली, अब वो कहाँ जाएगी? अब वो आप बताओ मेरे को, आप खुद सोचो, एक साल भी साथ नहीं रहे और दुनिया भर के एलिगेशंस लगा दिए उसके ऊपर। और जब साल में मैं 7 से 4 कोशिश कर चुकी, सबके पैर तक छू लिए, लेकिन नहीं करना शादी, क्योंकि किसी और से शादी करना, किसी और को रखना। वही तो गलत बात है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ भाई, 4-5 साल से सफर कर रहे हो, समझ में आता है। एक साल भी साथ नहीं रहे, क्या है? ग्राउंड क्या? देखिए बंसल साहब, ऐसा है कि हिंदुओं में शादी का महत्व कई दृष्टिकोण से होता है। शादी केवल 2 इंडिविजुअल में नहीं होती, शादी होती है 2 परिवारों के बीच में। समाज में कितनी संख्या में लोग आते हैं आपके रिचुअल्स में, सेरेमनीज में, तो वो लोग शादी के गवाह होते हैं। समाज में उस आदमी का और या महिला का स्थान दोनों के साथ रहने से होता है। यू गेट रिकॉग्निशन इन सोसाइटी बिकॉज ऑफ योर मैरिटल स्टेटस। यहाँ की शादियां ऐसे नहीं होती हैं कि आज किया और कल छोड़ा, या तो शादी ना करते तो वो कहीं और शादी कर लेते। पहले शादी किया, 3 महीने साथ में रहे, 1 साल से कम के पीरियड में केस लगा दिया क्रूएल्टी का। और आपकी माँ कह रही है कि तुम दोनों साथ में रहो। आपकी माँ कह रही है, लेकिन आपने शादी को मजाक बना दिया। अब किया है तो निभाओ। सर हमारा पैसा रख लिया, हमारे पापा ने क्षमता से ज्यादा दिए, छोटे छोटे मेरे बहन भाई। नहीं, पैसा कौड़ी अपनी जगह पे जो है सो अपनी जगह है वो, लेकिन किसी का जीवन क्यों खराब करना भाई? नहीं करना चाहिए था भाई, ना करते शादी। और जब किया है तो निभाओ फिर, क्योंकि ये जो कंडक्ट आपको दिख रहा है हमको, 1 साल हुए नहीं वहां पे केस लगा दिया, और वो भी क्रूएल्टी का। और माँ बोल रही है, आपकी जजमेंट में डिस्कस हुआ है, वो कह रही है दोनों साथ में रहो। ये तो गलत बात है। अब वो कहाँ जाएगी?
और कहीं शादी करेगी तो क्या दिक्कतें आएंगी आप समझ सकते हो। क्यों खेलते हो किसी की जिंदगी से? कोई बुलाइए आप एक दिन यहाँ पर, ये हरकत ठीक नहीं है। अगर आज हम लोग आपको परमिट कर दें तो कल आप उस किसी और की शादी करोगे, फिर उसको भी गड़बड़ करोगे, फिर कहोगे हम कहीं और शादी करेंगे, तो कोर्ट से मुकदमे में डिग्रियां लेते आएंगे हम। ऐसी डिग्री होती है क्रूअल्टी की। एक साल साथ नहीं रहे हो, क्रूअल्टी की डिग्री हो गई। और जिसके खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हो उसके खिलाफ कि आपकी माँ से मिसबिहेव करती है, और वही लेडी बोल रही दोनों को साथ रहना चाहिए। क्या फाइंडिंग आई होगी क्रूअल्टी की? टोटल परवर्ट्स, prima facie. I'm not saying anything on merits. Anyway, you call him. Kindly fix the date for the personal appearance. Let the VK so and so appellant along with the appellant and so respondent. Let appellant respondent remain present before this court 24th August. on this August is very we have very calendar is full with cases. We'll have it somewhere in September. 5th of September. No, fifth another case come on 13th of September. 12-13 को आ जाएगी, 12 को आ जाएगी। Okay then.